যারা ক্লাস 10 পাস করেছেন তাদের ক্রাইটেরিয়া যে তারা কনস্টেবলের পরীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাদের স্টেজেস আছে, কয়েকটা স্টেজ তাকে কভার করতে হবে। যারা সাব ইন্সপেক্টরদের পরীক্ষা দেবেন তাদের গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। আর তাদের আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে, তারা সাব ইন্সপেক্টরের সাথে সাথে WBCS, যারা কমার্স আছে তারা অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, যারা ল করেছে তারা জুডিশিয়াল সার্ভিসও দিতে পারে। আগে কনস্টেবল এত পরিশ্রমের ছিল না, কিন্তু কম্পিটিশন এত টাফ হয়ে গেছে, আপনারাই বুঝতে পারছেন যে আপনাদের পদ্ধতি পদক্ষেপ নিয়ে জিনিসটা গ্রহণ করতে হবে। সেই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে আমরা এইখানেই মেগা ওরিয়েন্টেশন কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম করেছি। বললাম 167 সেন্টিমিটার হতে হবে, 57 কেজি হতে হবে, 78 সেন্টিমিটার এক্সপেনশন টু 5 সেন্টিমিটার, 83 সেন্টিমিটার হতে হবে। অনেক করুন, জোরদারে হাততালি হয়ে যাক। কাইয়ুম আনসারি সাহেব আসুন, मौलाना शब्बीर अली वारसी। जोर से एक बार प्लीज। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस बिकॉज कमरुद्दीन मलिक, सोशल एक्टिविस्ट ऑफ कैलकाटा। और कयूम भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि हुनेस फातिमा के अपनी एक टू ऑनर करूं। हुनेस फातिमा 753 753 एज लिमिट सेम, रिलैक्सेशन हो 5 बचर, SC/ST OBC 3 बचर। पहले खुदा बंदे से खुद पीछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप लोग जो काड़ा पुलिस में, ये वेस्ट बंगाल पुलिस में कांस्टेबल्स या सब इंस्पेक्टर्स के लिए हाजिर हुए यहाँ पे, अपने आप को उस मुकाबिल बना लीजिए कि तमाम दीवार जो रास्ते में आएगी उस दीवार को आप मसमार करते हुए सब इंस्पेक्टर का पोस्ट या कांस्टेबल का पोस्ट हासिल कर लें। बनना मामूली सी बात नहीं है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है जहां पे सब इंस्पेक्टर की एक लग़ज़िश एक आदमी को जेल के अंदर भी कर देगी और एक आदमी को जेल से बाहर भी कर देगी। सब इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी मूवमेंट होता है सब इंस्पेक्टर से ही मूवमेंट होता है। सब इंस्पेक्टर जो लिख देगा उसको काटने की सलाहियत किसी के अंदर में नहीं है। खैर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए थे तलवार के जोर पर आए थे, हाथ में कलाई में दम था। आज उस कलाई की जरूरत है, लेकिन पेन पकड़ने की जरूरत है। आज तलवार का दौर नहीं रहा है, आज पेन का दौर हो गया है। आप पेन पकड़िए और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग के अंदर वो सलाहियत है कि आप अच्छे अच्छे रुकावट को पार करके आगे बढ़ जाएंगे। মধ্যে আপনি আড্ডা মারতে পারেন, কিন্তু স্টাডি করা একটা আলাদা জিনিস উচিত। সেই ধৈর্যটা কোথায় যাবে আমাকে নিয়ে, আর আমি এই ধৈর্যটা নিয়ে আমার পদ্ধতি আর পদক্ষেপটা 8 ঘন্টা পড়ে নেবেন, এতে কোনো আপনার বিকল্প নেই। এজন্য আপনারা এখানে এসছেন পড়ার দিক দিয়ে ফিজিক্যাল 3 মান্থস কোর্স আছে, আর এটা লিখে পার মান্থ 2000 रुपीज 10,000 रुपीज আপনার পুরো কোর্সে লাগবে। अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। हाजी स्पॉन्सर्स को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। मुख्तार अली साहब को, सिद्दीकी साहब जिस तरह से बोल रहे थे, इनकी कोशिशों से ये ओरिएंटेशन कोर्स आज हुआ। इट वॉज ए बिग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी, जो हम लोग ने ट्रैवल किया। जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি যে আপনি আতিফ সিদ্দিকী সাহেব বললেন যে আপনাকে ড্রিম করতে, আপনাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। ডক্টর APJ আব্দুল কালাম বলেছিলেন, আমাদের ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কে ইউ শুড ড্রিম আনলেস ইট কামস ট্রু। এ ড্রিম ইজ নট দ্যাট উইচ ইউ সি ইন ইউর স্লিপ, এ ড্রিম ইজ দ্যাট উইচ ডাজ নট লেট ইউ স্লিপ। ড্রিম ওটা যেটা আপনাকে ঘুমোতে দেয় না। তো ওই রকম ড্রিম রাখতে হবে, ডেডিকেশন রাখতে হবে, ডিটারমিনেশন রাখতে হবে। কয়েকটা কথা মাত্র ভাবার জিনিস আছে। আগে পুলিশ সার্ভিসে যারা যেত বা আমরা যখন পুলিশে গেছিলাম তখন মানুষ আমাদের ভালো চোখে দেখতো না। ডিউটি হচ্ছে ডিটেকশন এন্ড প্রিভেনশন অফ ক্রাইম, ডিটেকশন এন্ড প্রিভেনশন অফ ক্রাইম অ্যান্ড মেইনটেনেন্স অফ ল অ্যান্ড অর্ডার।
আপনাকে মেনটেন করতে হবে, ডিটেকশন করতে হবে, প্রিভেন্ট করতে হবে ক্রাইমটা যদি প্রিভেন্ট হয় খুব ভালো, যদি প্রিভেন্ট না করতে পারা যায় তখন আপনাকে ডিটেক্ট করতে হবে ক্রাইমটা, আর আপনাকে দেখতে হবে যে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়, একটা পিসফুল লাইফ মানুষের আপনাকে দিতে হবে, প্রোভাইড করতে হবে, তার জন্য ল অ্যান্ড অর্ডারকে মেনটেন করতে হবে। এই হচ্ছে পুলিশের মেন কাজ। এটা খুব চ্যালেঞ্জিং জব, 24 আওয়ার জব, 24/7 আপনি যেটা বলেন সেটাই জব। वेस्ट बंगाल रिलेटेड क्वेश्चंस टू यू, तो आपको बंगला जानना बहुत जरूरी है। बंगला आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। We can see serving officials and also retired officials are here. এখান থেকে আপনারা অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ এক্সপিরিয়েন্স শুনলেন। আমি কিছু বলবो कुछ बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ जाए हैं, यहाँ इतने बड़े लोगों से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। Being a woman, first you have to focus. First you have to decide whether you want to be here or not. आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि पुलिस जॉब इज नॉट एट ऑल इजी। आप अगर डिटरमाइंड कर लेते हैं देन ओनली गो फॉर दिस। एंड ভারতবর্ষের দুটো মূল স্তম্ভ, একটা হলো ডিফেন্স যেটা আর্মিরা করে, আর তারপর হোম। এই হোম অ্যাফেয়ার্সের ভেতরে পড়ছে আপনাদের পুলিশ সার্ভিসটা। আইপিসি, সিআরপিসি বা এভিডেন্সের নলেজের উপরে বেস করে একটা চার্জশিট ফ্রেম করছে, তার উপরে একটা মানুষের জীবন নির্ভর করে। पुलिस जॉब एंड डिफरेंट जॉब्स। बेसिकली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आई बिलोंग टू ए वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली पहले था, और उसके बाद में मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद में मैं टीचर हो गया। कमरहट्टी हाई स्कूल में आई वॉज ए टीचर, असिस्टेंट साइंस टीचर थे। पर मेरा पैशन था मेरी इंजीनियर बनने का, तो मैंने डीएमईटी का इम्तहान दिया और इंटरव्यू में नहीं आ सके। तो हमारा दूसरा रास्ता था मेरी इंजीनियर बनने का, बीओईटी था, कंबाइंड कोर्सेज ऑफ 4 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं पुलिस की ही जॉब पर आ रहा हूँ। तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मानिंद बैठा हुआ हूं, इसलिए कि यहां पर वो शख्सियतें आज बैठी हुई हैं कि जिनके सामने मैं बचपन से लेकर जवानी तक का मरहला मैंने तय किया है। जी, मैं मोहम्मद कादिर 2019 37 बैच सब इंस्पेक्टर मैंने क्लियर किया। अभी प्रेजेंटली मैं SAP8 बैरक में पोस्टेड हूँ। तो ये बच्चों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी में पोस्ट क्लियर है। आप बड़ी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी जगह पे आप पोस्टेड होंगे। और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप काम कर सकें, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बीइंग अ लेडी, मैं ये बोलूँगी कि आजकल वुमेन कभी भी पुलिस में आना नहीं चाहती हैं। ठीक है, सबसे पहला डर होता है कि पुलिस बहुत ही ख़राब जॉब हो, इस सोसाइटी में वुमेन के लिए माना जाता है। इनिशियली मैं भी जब इसमें आने वाली थी तो मेरे खुद के घर के लोगों ने बहुत कहा था पुलिस कैसा जॉब। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी जॉब खराब नहीं होता। अभी तो मैं समझती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब, वन ऑफ द मोस्ट नोबल जॉब है। अब इसी के तहत आप सभी का हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर आप ही के घर की वुमेन को कोई परेशानी हो तो आप पुलिस के पास पहले दौड़ते हैं। तो अगर वहाँ पे आप ही के घर के लोग या फिर वुमेन नहीं रहेगी तो हेल्प कौन करेगा? कि हमारे खास करके हमारे जो मिल्लत के लोगों में इस चीज़ की बहुत कमी है, और ये शिकायत रहती है कि कोई कराता नहीं है। तो हम लोगों ने अपने तौर पर एक टीम बनाकर ये कोशिश किया है। गर्चे हम लोग सियासी आदमी हैं, मैं खुद सियासी आदमी हूँ, लेकिन हमारे साथ नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं। मकसद ये है कि किस तरह से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इस फोर्स में सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं होगा। फॉर्म भर देंगे, पुलिस का नौकरी आता है, और उसके बाद उसमें क्या करने पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है, कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, और कितना प्रैक्टिस करना, कितना रूटीन वर्क है, उसके लिए उनको गाइड कोई नहीं मिलता है, और वो इंडिविजुअल जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पूरे मगरबी बंगाल में, देश में ये पूरा काम करने के लिए। ये मोटिव सिर्फ आज हम लोग यहाँ पर राजा रहाट हज हाउस में हैं,
सरकार ने जो मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने बनाई है, वहाँ पर आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में और नेशनल लेवल में प्रोग्राम जाएगा। इस तरह का ओरिएंटेशन कैंप, कोचिंग हम लोग चालू करेंगे, ताकि हमारे जो उनहार बच्चे हैं, जिनके बैकग्राउंड उनके माँ बाप इस तरह का तालीम हासिल नहीं किए कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके, तो हम लोग अपने तौर पर उनका गार्जियन बन के उनको आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही रिजनेबल रेट में, नो लॉस नो प्रॉफिट के लेवल पे उनका काम करेंगे। आज तो हम लोग ये फ्री काउंसलिंग कराया है बहुत बड़ा। इससे पहले भी हम लोग 20-25 दिन पहले WBCS का हम लोग काउंसलिंग कराया था, जिसमें बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां और 12 से 14 WBCS ऑफिसर शामिल हुए थे। तो वहाँ भी बहुत इंस्पायर हुए कि हम लोग को WBCS बन सकते हैं। तो ये एक कड़ी है, शुरुआत है 2 प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम हम समझते हैं कि ये जिला में, डिस्ट्रिक्ट में हम इसको ले जाएंगे, वहाँ पर भी ये काम शुरू करने का इरादा है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। सरकार अपनी तौर पर, ममता बनर्जी की सरकार जो है, एक तरफ से नौकरी के लिए रास्ता बना रही है और उनको रास्ता में चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए हम जैसे लोग हाथ बढ़ाएंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ मुख्तार अली भाईजान का, हमारे माइनॉरिटी सेल के और ये ताज ग्रुप का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक हमारे माइनॉरिटी कौम के लिए जो काउंसलिंग का प्रोग्राम अरेंज किया हमारे यूथ के लिए, ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रोग्राम अरेंज किया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसका हम लोगों को हिस्सा बनाए, इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी बच्चों को जो आज आए हुए हैं काउंसलिंग के एग्ज़ाम के लिए या ओरिएंटेशन के लिए, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है और मैं आशा करता हूं कि हमारे गांव के बच्चे भी ज़रूर। अगर आप देखें दूसरे स्टेट से, अगर आप वेस्ट बंगाल को मिलाएं तो हमारे यहाँ की पुलिस काफ़ी इको फ्रेंडली है, काफ़ी फ्रेंडली है। क्योंकि देखिए, जो हाल यूपी का है, जो हाल महाराष्ट्र, जो हाल दिल्ली का है, वो हाल बंगाल का नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ तो पुलिस जाएगा ही, हम तो गलत को साथ नहीं दे सकते ना। मुख्तार भाई के पूरे टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम आए दिन हफ्ता वो करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे कौम के बाहर के लोगों के लिए भी। मकसद ये था कि कौम के बच्चे हमारे बहुत सारे, आज हम लोग यहाँ पर टारगेट अचीवमेंट जोन के थ्रू जो हम लोग एक काम किया है, पुलिस में जो भर्ती चल रही है, उसमें किस तरह से बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेके आगे बढ़े और आगे उसका पूरा नस्लनुमा, उनकी पूरी तैयारी हम लोग करने की जिम्मेदारी ली है। तो आज करीब 350 बच्चे यहाँ पर आए थे, रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे आना जाना करते रहे। बहरहाल आज हम सबों की खुश नसीबी है, हमारे भाई, हमारे कलीग AKM फराग धर्मदक को यहाँ नॉर्थ चौबीस परगना के जिम्मेदार है यहाँ पर, और हम आसिफ अल कादरी साहब फिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी कहे कि मैं तो आपके मिलने आ रहा हूँ, आपकी दावत में आ रहा हूँ, तो हम लोग उनके इंतजार में थे। यहाँ हमारे तमाम हमारे जितने लोग हैं सब हमारे पहचान के लोग हैं। मेरा बड़े भाई शबीर गाजी साहब, मुख्तार साहब, और जो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिला के चले थे पैंडेमिक के टाइम, तौसीफ भाई को भी मेरा प्यार भरा सलाम, क्योंकि जब मैं चल रही थी पैंडेमिक के टाइम पे भी तौसीफ भाई भी मेरे साथ से कदम से कदम জায়গা আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। তার একটা ইন্টারভিউ এসেছিল যে ওনারা যখন পড়াশোনা করেছিলেন তখন কিন্তু ওরা দুটো রুটিও পেতেন না। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हम लोगों को ये सआदत अता की, क्योंकि ये मुक़द्दस मकाम है। हज कमेटी, अगर आप दीनी नज़रिए से देखें तो हम लोग एक बहुत मुक़द्दस मकाम पर इस वक्त बैठे हैं, और इसका अल्लाह और रसूल के बाद दुनियावी एतबार से अगर सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है किसी को, तो वो मुख्तार अली अंकल की मेहनत है।
जिनकी दावत पर जिन्होंने इस बात को ज़रूरी समझा। वाकई देखिए, हम लोग कई जगहों में सवालात किए जाते हैं। चूँकि मैं पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया के तकरीबन कई ममालिक का दौरा किया है, बात कह सकता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म कहीं बची हुई है, जमहूरियत कहीं महफूज है, तो वो हमारा बंगाल है। আমার ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং আসসালামু আলাইকুম। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অতি পরিচিত মুখতার ভাই, উপস্থিত আছেন আমাদের হিন্দু ধর্মের মহারাজ প্রতীক মজুমদারজি এবং আলেমে দ্বীন মৌলানা শব্বির আলী বার্সি সাহেব, যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তকরির করছেন। উপস্থিত আছেন ফরাদ ভাই, তৌসিফ ভাই সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সবাইকে আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাই। যে আজকের যে অনুষ্ঠানে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি, এই অনুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য, এজেন্ডা হলো এটাই যে মানুষের কাছে রাজ্যের ডেভেলপমেন্টটাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, যেভাবে তরক্কি হচ্ছে, এই উন্নয়ন যদি মানুষের কাছে না পৌঁছায় তাহলে আমরা অন্যান্য রাজ্যের কাছে বলতে পারবো না যে আমরা কত ডেভেলপ করেছি। অর্থাৎ যে ডেভেলপমেন্ট পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়ন করছেন, আপনারা দেখছেন এই হজ হাউস কিভাবে সাজানো রয়েছে। একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখা যায় এই ডেভেলপমেন্ট যদি, ভাই আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনীতি করি না, কিন্তু আমি একজন নন পলিটিক্যাল ব্যক্তি হয়ে আমি এটা দাবি করব এবং বলবো যে ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছে এটার ক্রেডিট মমতা ব্যানার্জিকে যায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে যায়। এবং আমি এটাও বলবো যে যদি এই ডেভেলপমেন্ট আমরা গোটা ভারতবর্ষে দেখতে চাই তাহলে তার একটাই রাস্তা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নয়, উনি যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে। সেই শাহাদাত যারা বরণ করেছিলেন ওনাদের জন্য আমি একটা আশার পড়ে আমি আমার तकरीर शेष करब जे बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।